if there's one thing that drives India, it's entertainment, entertainment, entertainment. और हमारे ऐप कटिंग का यही प्रॉमिस है, एंटरटेनमेंट का डोज हर रोज, सातों दिन कड़क एंटरटेनमेंट. So please download the app, watch it, and tell others, tell the whole country that cutting is here for you all. Thank you. Hi everyone. Thanks to all of you for being here and helping us to reach here. And it was only possible with your support. So basically, the way we have designed this app is to ensure we can cater to both the audience. We have been known as a legacy for long form content, but here when you look at the vertical format, it's just swipe and go. So users can consume the content on the go. So this app has been built with the mindset of users first, where they can enjoy the content in both the formats, be it on the go in vertical format or be horizontal format. Thank you. Welcome everyone and thank you so much. First of all, I want to thank the entire creative team over here. They have made this show. Apurva, Shamaila, Shweta, Gyan, Apurva and Apurva. So thank you so much. Thank you to all the producers. Thomas. Also special thanks to my commercial team, Amit and Amavan, for ensuring that producers come पैसों पे काम करें हमारे लिए. Thank you, thank you. And thank you to all the actors, producers. Thank you so much. When I was hired to work on the content over here for the cutting, the exciting part was यहाँ पे हर तरह का काम करना है. Just exactly like my CV, which is full of colorful. I've done non-fiction, I've done fiction, I've done web space, and I've been a journalist. So being a journalist, I obviously had a chat shows. So it was like, हाँ ये तो मैं कर लूँगी, क्योंकि this is what I have been doing it, and that's the fun part. Usually getting to do daily soap, daily drama, the binge watch shows, the non-fiction, the micro drama, the micro dramas. So it's an exciting thing. So that's what the slate is also, which is extremely fresh, massy, in some spaces aspirational, and we've kept in mind all the genres so that people are getting everything. There's comedy, there's thriller, there's psychological thriller, there's crime, and there is daily soap, and there is aspirational content of mother-in-law, daughter-in-law, but completely spoken in a new language. So yeah, we'll just want to take you through the interesting shows that we have, and we have the cast also over here. Thank you so much. Give a big round of applause इन सब के लिए please. मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले ग्रुप फोटो के लिए आप लोग इकट्ठा हो जाए यहाँ पे. Thank you so much. I'll request everybody to take their seats. I'll request Meghna ji to please remain on stage. Thank you so much. Already live. It's called Missing Priya, and the Priya is here, Abigail. In two lines, if I explain the show, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे पुलिस स्टेशन में रात को एक आदमी आया है अपनी बीवी की कंप्लेंट लिखाने कि वो मिसिंग है, और वहीं पे एक दूसरा आदमी आया है अपनी होने वाली अगर बात हो रहा है तो हम कैसे नहीं बुलाए अबिगेल को ऑन स्टेज. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज अबिगेल के लिए प्लीज एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच. और मुझे लगता है आपने कैरेक्टर जो निभाया वो आपने अपना खुद का ही कैरेक्टर निभाया, क्योंकि स्कूल में भी आपका इतना ही डिमांड होगा लड़कों के बीच में, कॉलेज में भी होगा. इट्स प्रीटी मच लाइक दैट, राइट? नहीं मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में. Oh, unfortunate for the guys. Share your thoughts regarding the project. Actually, as it's already been spoken about, हमने काफी रिकॉर्ड टाइम में ये शो शुरू किया है. हमने नासिक जाकर शुरू किया है, बहुत ही बाहर की लोकेशंस में शुरू किया है. And I think we had a great time. जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी क्या want to do this show, मैं खुद ही पढ़ के इतनी हैरान थी. So I really love playing. अबे बैकग्राउंड नीला है. का फेस देख. हमारा शो देखिए लाइव है, 2 एपिसोड्स आ रहा हूँ. So उसके बाद हम बातचीत. Thank you so much. I wish you all the best. I'm sure जैसे कि लोगों को अब तक आपका काम पसंद आया, इसमें भी इतना ही पसंद आएगा. एक और बार जोर से ताली please. Out here, Siddharth ji is here. So can I please request Siddharth Bhardwaj sir over here to kindly come up on stage. Thank you so much sir. What a pleasure. विनय फोन आ रहा है तेरा. When you were going back, क्यों जा रहे हो वापस? I think for me life has come full circle because I started my journey on GECs with Thomas sir. He was my first director and we did a non-fiction show together, and now I'm starting my journey as an actor on web
And again, it is Thomas sir. A special mention to Shankar sir because जब मैंने इनका काम देखा, I did not even have to read the script. I just told him मुझे आपके साथ काम करना है. And when we reached the location, I'm not going to romanticize it and say कि बहुत ही मतलब बढ़िया location थी या फिर I'm not going to sugarcoat it. It was a challenging schedule, but it did not feel challenging because we literally were enjoying each and every minute that we were spending together as a team. So much so कि मैं ज़्यादा रोती नहीं हूँ, but when I was leaving the set, finally after my last shot, and I saw my entire crew be there waving goodbye to me, it was so heartfelt. So I'm so glad that I started my journey on web with you, Shankar sir and Thomas sir. Thank you so much. हमने एक भी सीन साथ में नहीं किया है, but I have seen sir work, I've seen his process, and it was truly a learning experience for me. And I really hope कि बस ऐसे मौके मुझे और मिले. So thank you so much, cutting. Thank you so much, Thomas sir. Thank you so much, Shankar sir. Each and everybody who was a part of this. Thank you so much. धन्यवाद थॉमस सर, शंकर सर, और अभी कुछ बता दिया इन्होंने। और बस मैं इतना कहूँगा, कहानी बहुत नई है और ऐसी कहानी जो आप मतलब शायद अभी लोगों ने नहीं सुनी होगी। छोटा सा बताता हूँ कि हम लोग अपने बच्चों से जो बातें करते हैं, बच्चों को बोलते हैं बेटा हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन हम बच्चों के सामने ही झूठ बोल देते हैं और फिर बच्चों के प्रोसेस में, बड़े होने के प्रोसेस में उन पे उन बातों का क्या असर होता है, ये एक डिफरेंट टाइप की स्टोरी है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। थैंक यू बेटा। Thank you so much. आप दोनों को best wishes for the show and everything that you do moving forward. Congratulations. You know, in the space of family content, but lot of inspiring and inspirational. मैं literally बोल सकता हूँ स्वाद आ गया है। मैं आप दोनों को रिक्वेस्ट करूँगा to say a few words. सासू माँ पहले ना। It's a deep and thank you so much Balaji, thank you so much Vedant and Vinayak sir, Amit sir our director. So जैसे ही पहली बार I got the script and ये ऐसे करना है and सास is going to be a little different सास, not a regular one, not what we see on television or usually we think about saas. So that was actually a beautiful story which was narrated and I immediately was very excited and wanted to do it. And we had a great team, we loved each and every moment and we enjoyed thoroughly doing that, and especially making recipes in the kitchen and standing and having all of fun. We had अपर्णा मैम, आप बन रहे हो वहाँ पे सास, लेकिन ग्लैमर अब कैरी कर रहे हो बहू वाला, ये तो मानना पड़ेगा। इनके लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। Thank you so much. और रिक्वेस्ट चाहत, आप कुछ कहना चाहो रिगार्डिंग द शो? पहली बात तो मेरी सास बहुत सेक्सी, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, और ऐसी सास भगवान सबको दे जैसी मेरी शो में थी एंड जैसी अपर्णा जी रियल में। सो यस, सबसे पहले तो इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी है और हमने बहुत अच्छे अच्छे सीन्स किए हैं साथ में। एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं अमित सर, ये पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। उन्होंने सबको बहुत अच्छे से संभाल के रखा, सबके कैरेक्टर पर ध्यान किया। लाइक आप कोई भी कैरेक्टर देखोगे हमारे शो में, कोई भी किरदार, हर किरदार एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है और सबका एक अपना ही अंदाज है, अपना ही सबका मज़ा है। सबको देखने में बड़ा इंटरेस्ट आता है ना, चाहे वो मेरी देवरानी हो, भाभी हो, कोई भी हो। सो यस, बहुत अच्छा रहा एंड हमारा एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था। और हमारी स्टोरी जैसा कि अपर्णा जी ने बताया थी, टिपिकल सास बहू वाली नहीं है। मेरी सास जो है वो बहुत सपोर्टिव है एंड सास और बहू साथ में मिलके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कहानी है। ना कि बहू आगे बढ़ना चाहती है फिर सास टांग खींचती है, उसकी रोकती है, ऐसा मत करो, ये सब बिल्कुल नहीं है। कैसे बहू सास के सपोर्ट से अपने सपने पूरे करती है, ये इसकी कहानी है एंड ये बहुत इंस्पिरेशन स्टोरी है। आई थिंक जो भी हमारी कहानी देखेगा सास बहू और स्वाद, उसका नज़रिया चेंज होगा सास और बहू के रिश्ते के लिए। जैसा अभी तक देखते आए हैं कि सास बहुत नेगेटिव होती है, बहू को रुलाती रहती है, तो हमारी सास ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। सो
बहुत मज़ा आया साथ काम करके एंड आप जब देखेंगे तब पता चलेगा। और हमारी कहानी में सारे स्वाद हैं, मतलब तीखा भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, सब कुछ है, खट्टा मीठा भी है। सो थैंक यू सो मच गाइस। क्या बात है, बेस्ट विशेस आप दोनों को। आई थिंक बालाजी धनिष्मा सावंत, आदर्श सिंह, थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए। मैं आप तीनों को रिक्वेस्ट करूंगा टू कुछ से अ फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग द शो। इस शो में कॉमेडी है, रोमांस है, सस्पेंस है और फ्रेंडशिप है। और ये शो शूट करते ही बहुत मज़ा आया और जब ये शो आगे भी गया तो इन्हें भी बहुत मज़ा आ रहा है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब रिलीज होगा सो दैट एवरीवन कैन विटनेस इट। एंड थैंक्स टू काटे, थैंक्स टू बालाजी, इट्स अ ब्लेसिंग टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी। Also, big thanks to Deepak sir who gave us the freedom to perform with our creativity. Thank you so much. Thank you everyone. We do a lot of work, but doing this show was an absolute pleasure because it was a no holds bar. We were given complete freedom to do whatever we like, and so much work that we did. And we spent most of the day laughing and enjoying ourselves. So I'm sure the heart and love that we put into the show, the producers and directors have put into the show, and people are going to love it, especially on the cutting app. And thank you, thank you so much for having us here. And we hope you enjoy Garte Raha. Hi everyone, I'm really honored to be on the stage with these lovely two actors. और बहुत सारे लोग जो यहाँ पे मैं कास्ट में देख रहा हूँ उनको मैंने हमेशा टीवी पे देखा है। सो माय मम्मा विल बी प्राउड। और बहुत मस्ती की हमने इस शो को बनाते हुए और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी जब आप देखो तो पसंद आए, मजे आए। बालाजी परिवार रहा है मेरा। दिस इज काइंड ऑफ अ होम कमिंग ऑफ सॉर्ट्स फॉर मी। मेरे करियर के दो सबसे बड़े शोज, सबसे इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग शोज मुझे बालाजी फैमिली से मुझे मिले। और जब मुझे कहा गया ऐसे एक शो के लिए जो क्राइम थ्रिलर है, डार्क है, फूड अमिट स्पेस में है और सबसे हाईलाइट की आपकी बेटी भी है, तो मैंने कहा अरे वाह अच्छा। सो बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पर मुझे एक्सपीरियंस करके बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। the entire team, especially I think our director and please I would like to also call my writer Gyan, please come on stage. ज्ञान जी आइए आप प्लीज अपना ज्ञान का भंडार लेके आ जाइए यहाँ पे। क्या बात है, ज्ञान जी के लिए जोर से ताली प्लीज एवरीबॉडी। थैंक यू। You also Apurva, you're brilliant. Thank you. Come guys. Big round of applause for her please as well. हमारी पूरी टीम आई थिंक जिसने आई एम श्योर बहुत मज़ा किया। बहुत ही एक कम टाइम में हमें मिला बहुत कुछ करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। सो आई थिंक इट वाज नॉट इजी बट लॉट ऑफ फन। थैंक यू बालाजी कटिंग टीम, थैंक यू गाइस। मैंने जैसे पहले कहा कि मैंने अपने 2 शोज जो किए हैं बालाजी के साथ उसमें हम बड़े हुए पूरी कप चाय पीकर। कटिंग का जो मज़ा किया उसका बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू सो मच। नाउ ओवर टू विनय। विनय आई वुड लाइक टू से दैट विनय हम सब जानते हैं कि बहुत उम्दा कलाकार है। पहली बार मुझे मौका मिला इनके साथ काम करने का। बहुत ही पैशनेट और बहुत ही कूल इंसान है। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि इट्स अ क्राइम थ्रिलर, तो मैं चाहता हूँ आप लोग देखें, बहुत जल्द वो रिलीज होने वाला है। सो तुम भी कुछ ज़्यादा बोलना है। नमस्कार, मैं हूँ विनय आनंद और यहाँ पे काफ़ी मुझे यूथ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा सा घबराया हूँ बताते हुए कि आज से 20 साल पहले मेरी आमदनी 18,000 रुपये आई थी, जो आप लोगों ने देखी होगी। काफ़ी जो जवान हैं वो 13, 14, 15 साल के थे। तो हम अभी भी देखते हैं सर जी, वो अच्छा सिनेमा मूवी। तो आफ्टर डूइंग लो मैं आ गया, दिन में फिर याद किया सौतेला, आमदनी 18,000 रुपये, सेवरल फिल्म्स इन हिंदी। आई वेंट इनटू भोजपुरी सिनेमा और वहाँ पे ईश्वर की कृपा से मैंने 70 फिल्में एज ए हीरो की। मेरे पास वक्त ही नहीं था हिंदी में आने का, क्योंकि यहाँ मुझे किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ता था कि भैया हमके काम दे दी, मुझे काम दीजिए भैया, मैं गोविंदा का भांजा हूँ, मुझे काम दे दो। तो ये सब मैं कर चुका था और इतनी फिल्में नहीं आती थी और रोल भी अच्छे नहीं थे। जब भोजपुरी में गया तो एक ईश्वर की कृपा हुई और 100 पिक्चरें, 200, 250 पिक्चर ऑफर हुई, तो जाके मैंने 60-70 किया
और अच्छा सिनेमा किया और ईश्वर ने यहाँ भेजा। मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा बालाजी का। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं बालाजी के टीम के साथ काम कर रहा हूँ। ज्ञान रंजन जो हैं हमारे, अपूर्वा जी जो हैं, इतना अच्छा सब्जेक्ट मुझे लाके दिया है। मेरा रोल इतना ज़बरदस्त है कि मैं मना नहीं करता। बहुत कई हिंदी फिल्मों में रोल ऑफर हुए थे, कई फिल्म में मैंने पैसे लेके वापस कर दिए कि भैया मज़ा नहीं आ रहा है, रोल अच्छा नहीं है, करूँगा तो रोल अच्छा होगा तो ही करूँगा, हीरो हूँ अच्छा ही रोल करूँगा। तो ईश्वर की कृपा है कि वो उसी तरह से मुझे ये काम मिला। बहुत खुश हूँ श्री आदरणीय जितेंद्र जी के आशीर्वाद से। एकता कपूर मैम जो हैं वो इतनी बड़ी प्रोड्यूसर बन गई कि आज विश्व में उनका नाम, हमारे हिंदुस्तान में 2 ही 3 ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिसमें से बालाजी का इतना बड़ा नाम है। और आज कटिंग ऐप जो आ गया है, मैं पूरे उत्तर भारत, बिहारी हमारे भाई बहन जितने उत्तर भारतीय, बिहार, झारखंड और पूरे हिंदुस्तान से और पूरे विश्व से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी इसी वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऐप जो OTT बनने जा रहा है कटिंग, उसको अभी डाउनलोड करिए और अपने विनय आनंद को भाई देख लो, हिंदी में फिर लौटा है तो आशीर्वाद दे दो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। आनंद आ गया आपका बात सुन के। मैं ये कह सकता हूँ आप दोनों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ बताने के लिए रिगार्डिंग द शो। जब ये शो के बारे में हमने लिखा, ये शो की स्क्रिप्ट हमारे दिमाग में जब आई, पेपर पर जब उतारी गई, तो सबसे पहले हमने विनय सर को ही अप्रोच किया और उनका रिएक्शन ये था, भाई तुम लोग ना मुझे मामा से पिटवाओगे, नेगेटिव कैरेक्टर करवा रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो हमने उनको बोला सर आप ये करके देखिए, आप ये पढ़िए, ये एक नया कैरेक्टर है, शायद आपने ऐसा कैरेक्टर पहले ना किया हो। आपके लिए आपकी अभी तक की जितनी भी फिल्म्स करी है, शायद उससे ये हम डिफरेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ही लाइक द नरेशन एंड ही अग्री टू द कैरेक्टर। और उसके बाद व्हेन वी कम टू शरद सर भी थोड़ा सा हमें डर लग रहा था कि शरद सर को पता नहीं, क्योंकि अभी तक जो चॉकलेटी बॉय वाली जो इमेज थी सर की, तो ये थोड़ी सी ब्रेक हुई है उससे। तो आई एम श्योर आप सभी को पसंद आएगा ये नया क्रिएशन सर का भी। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं बस इतना कहना चाहूँगा एज बीइंग अ राइटर, हर शो, हर कहानी जो भी एक राइटर लिखता है लोगों तक पहुँचती है। हर कहानी अपने में विशेष है, अच्छी है। और अगर मैं इस कहानी की बात करूँ तो मेरे ख्याल से हर थ्रिलर एक मज़ा दे जाती है और ये थ्रिलर अपने आप में एक अलग मज़ेदार एक्सपीरियंस है। जो भी बेहतरीन काम हुआ है एज एन एक्टर, मैं शायद सर की बात करूं या विनय सर की बात करूं, दोनों ने बखूबी काम किया है। मैं ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहता कहानी के बारे में, आप प्लीज शो देखिए एंड देन कमेंट्स आर वेलकम। थैंक यू सो मच। Honestly, this was a very last minute thing. I have come here because Mohammed said आना ही पड़ेगा and I didn't know I was going to see so many people, so this is quite scary for me. But I'm seeing a few faces, Iqbal, Sharad, of course. And I have to say it was great working on Honestly Why Not. Though I will say कि मोहम्मद थोड़ा पुसी हो गया था मुझसे क्वेश्चन करते करते। ये शो ही ऐसा है जहाँ पे ये बहुत कुरेदने की कोशिश करता है, बहुत गॉसिप निकालने की कोशिश करता है। और क्योंकि मेरा किरदार ऐसा है और जिस वजह से मेरे फेमस उसको लगा कि भाई मुझसे बेटर कौन, लेकिन he did realize that I'm not that easy to crack. I'm quite a tough nut to crack. तो but the show is fun, light paced, relatable, funny है, interactive तो है ही, but आप लोगों को एक अलग साइड भी देखने मिलता है because we are so all of us are so free with Mohammed in the sense कि he's very warm and welcoming. The whole set is very welcoming. The show was a great experience. बड़ा मजा आया, खाने पीने को भी बड़ा मिला साथ में, जैसे कि आपने मेरे एपिसोड में देखा होगा। But it was good fun. But overall, Mohammed is the creative person, so he should take over now and say what and why did he choose us to come on the show. Well, good evening everyone. So, Honestly Why Not was an idea for initially doing a podcast that Nitin's team held out
then helped in the overall creative work, the team which we worked together, and then came up with 3 different segments. We don't wanted to make it ordinary, so we made entire show as extraordinary, where we keep 3 different segments. So we kept it very lightly, which we get to know because all the sellers are very closely working with us and in a friendly way. We don't make them ask some questions where they are discomfort. So we kept the segment names also in that way, Sip and Spill, then Tere Mere Beach Mein, which was very amazing. And we have shot for first 6 episodes now. Then season 2 is also coming up, but with a very different creative. Season 1 we have done with all ladies. And season 2 we have a different segment again for 6 to 8 episodes, which will be very much fun in a different way. That's it. And for more details you have to watch. All the male actors, I really want to see. तो मे- कोशिश की हम लोगों के साथ कुछ कामयाब रहा, कुछ फेल हुआ, but ठीक है. But I want to see the male second season. Males will not do the drama, either they'll give a straight answer. Females has more drama part in them. Excuse me, मेल्स ड्रामा नहीं करते, ये तुम कौन सी दुनिया में हो मुझे ये नहीं मालूम है, बट ये तुम फालतू में हम लोगों को करना मत किया करो. इनफैक्ट we spill, you know, and they gossip. That's the thing. That's what I feel. In season 2 we'll get to know who did more better, and of course I feel males will do more better and they'll give us more controversial parts. And so that's all about Honestly Why Not. So you all need to watch all the 6 episodes. It's one of the best podcasts we have done till now. Because we can't call it as a podcast. It's one of the best shows which you will see all the different team members we have done together. Thank you.